नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं तेजिंदर सिंह। कोविड संक्रमण हर दिन के साथ एक नई चुनौती लेकर आ रहा है। मामले बढ़ रहे हैं और जरूरी है कि वैक्सीन लगवाने के साथ ही हम बुनियादी सुविधाओं सावधानियों का भी पालन करें और हर हाल में इनका पालन करें। घर से बाहर और दफ्तर में काम करते वक्त मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और हैंड और ओरल हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। आज के इस डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में हम बात करेंगे होम आइसोलेशन की, यानी कि अगर किसी व्यक्ति में कोविड के मामूली लक्षण हैं तो वो घर पर ही रह के किस तरह से इसका उपचार कर सकते हैं। बहुत से कोविड मामलों में घर पर ही इलाज संभव है, लेकिन जरूरी है बेहद सावधानी की। क्या है ये सावधानियां और इस दौरान किन किन अहम बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में आज हम बात करेंगे अपने इस शो में। और इस बारे में सलाह देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल भी मौजूद रहेगा। अगर आप इस संबंध में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0112338701। इसके अलावा आप फेसबुक के जरिए और ट्विटर के जरिए भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं हूं तेजिंदर और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी रुकमा। Well, hello Tejinder, and a very warm welcome to all our viewers as well. As Tejinder said, the topic of our discussion here on Dr. Speak today is home isolation. What are we to understand when doctors tell us to isolate ourselves at home? What is home isolation? What are the points that we have to keep in mind when we isolate at home or when we are taking care of patients or otherwise who are undergoing home isolation? And much more in this conversation in the next 1 hour with our guests on the show, Dr. N.N. Mathur, Director, Lady Hardinge Medical College, Dr. Mradul Kumar Daga joining us now, as well as Dr. Neeru Agarwal, Director and Head of Department Nephrology, Max Hospital. A very warm welcome to all our distinguished guests. Thanks so much for joining us. First of all, coming to you, Dr. Neeru Agarwal, what are we to understand by the term home isolation? Home isolation means when a patient turns positive for COVID, he is supposed to stay at home. When we should consider it, and at the same time, what are the factors that warrant us that the patient should stay home? For example, when a patient has this infection, if infection is mild, that means the patient although has fever, all the features of COVID, but his saturation is more than 94%, then this patient is supposed to stay at home. At the same time, it is very important we should understand whether patient is fit enough to stay at home in isolation or not. Suppose this patient has many comorbidities like, hello, can you hear me? Right, जी। ma'am, please continue. So, if this patient has many comorbidities like diabetes, hypertension, heart disease, kidney disease, liver disease or lung disease or anything that makes him unable to stay alone, then he would not be considered as a case of home isolation. Patients who are above 60 years of age, we should think twice before keeping them in isolation. Other thing is the caregiver. The person who has to give care to the patient who is to go into isolation is very important, because a person, suppose it is a 50 years old patient and he has a person who is 70 or 75 years old as a caregiver. I don't think he would be able to take care, he would be able to understand whether isolation would be possible. Why I am saying so is because in isolation one has to take all the precautions, like the person has to keep a mask on. Whether this 75 years old person would be able to keep the mask on or not, he will not touch his mask or not, whether he'll be able to maintain proper hygiene, wash his hands, sanitize all the things, and at the same time using of utensils, using of dirty linen. All these things are many factors which actually affect the home isolation. So in taking if we are sending a patient for home isolation, besides being that he has mild symptoms, the other factors should always be taken into account. If you feel this patient cannot manage at home, he can become sick or he has many comorbidities that can make him unstable, then it should not be considered.
जी बिल्कुल। डॉक्टर एनएन माथुर, आपसे एक चीज़ होम आइसोलेशन के बारे में ही जानना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर इस बारे में सवाल लोगों के आते रहते हैं कि होम आइसोलेशन करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन ऐसे घरों में क्या होम आइसोलेशन हो सकती है जहाँ पर एक ही बाथरूम हो या एक ही टॉयलेट हो जो सभी घर के सदस्य यूज़ कर रहे हों? वो इस सिचुएशन में क्या अस्पताल ही जाना पड़ेगा? जी, होम आइसोलेशन में ये ज़रूरी है कि पेशेंट्स जो हैं एक कमरे में तो हों, और वो कमरा सेपरेट हो, जो पेशेंट जिस कमरे में बिल्कुल भी उससे मिले नहीं। और ये भी ज़रूरी, ये भी सॉर्ट ऑफ डिज़ायरेबल तो डेफिनेटली है कि बाथरूम भी अलग हो और वो शेयर नहीं करें। लेकिन ऐसा क्योंकि शायद बहुत सारे इंडियन हाउसेस में पॉसिबल नहीं है, तो ये लेकिन सुनिश्चित ज़रूर हो कि जब पेशेंट जो है वो एक कमरे के अंदर अलग से हो और उस कमरे को कोई शेयर नहीं करे। बाथरूम अगर शेयर करना भी है तो डेफिनेटली जब वो पेशेंट उस बाथरूम में जाए तो कोई नहीं शेयर करे, और जैसे ही वो बाथरूम यूज़ कर ले उसके बाद उसको सैनिटाइज किया जाए। इतनी प्रिकॉशन लेके भी होम आइसोलेशन प्रैक्टिकली आई वुड से किया जा सकता है, क्योंकि लोड ऑन द सिस्टम, ऑन द हॉस्पिटल एंड कोविड केयर सेंटर्स और कोविड केयर हॉस्पिटल्स इज सो मच दैट राइट नाउ हम लोग जो हैं वो खाली सिक पेशेंट्स ले रहे हैं जो कि मॉडरेट टू सीवियर सिकनेस में हैं। देयर इज़ नो प्लेस राइट नाउ इन द सिस्टम बिकॉज ऑफ ओवर एक साथ सर्ज इतना ज़्यादा हुआ है कि हमारे पास इतनी अगर हम लोग माइल्ड केसेस को भी अगर हॉस्पिटल में ट्रीट करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। इस वक्त हॉस्पिटल को बिल्कुल ही उस बीमारी के लिए, उन बीमार व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जा रहा है जिसके अंदर सिकनेस ज़्यादा है। तो इसलिए होम आइसोलेशन तो आवश्यक है, नीड ऑफ द आवर है। और इतनी प्रिकॉशन लेके कि एक कमरा अलग हो और अगर बाथरूम शेयर करना है तो करें, लेकिन बट उसको सैनिटाइज कर दें तो काम चल जाएगा। Right, coming to you, Dr. Daga, when we talk about patients in home isolation, what are the precautions that need to be taken as far as using utensils are concerned, sharing utensils are concerned, sharing linen is concerned, and does it mean when somebody is in home isolation that the person has to stay in that room and never venture out of it at all? You are absolutely right. I think the main purpose of home isolation is in mild patients for this very reason, that they do not venture out. That's very important. Everyone wears a mask. The patient and others also wear masks. And thirdly, what is more critical is that when you're changing your linens, utensils, okay, if he cannot wash himself, the relatives can help him, they can wash him and then sanitize their hands and wash their hands. But for linen also, linen absolutely also should be separate, and when they need to be changed, they should be washed separately if possible. And even if they are washed with other clothes, you can think in terms of adding some sanitization, doing some kind of adding some of the solutions there. But by and large, it's not a major source. We now know that contact and contact surfaces are not the real major source. In this second wave, it's almost there in the air. And what is needed is this complete isolation. So everyone wearing a mask in the house is important. The patient himself wearing a mask is important, and not moving out of the room if possible. जी, और इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, जतिन है दिल्ली से। जतिन, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी जतिन, आपकी आवाज हमारे पास पहुंच रही है, अपना सवाल पूछिए। सर, एक्चुअली इससे जो पोस्ट कोविड हुआ था, पोस्ट कोविड का जो सेशन था 2020 में हुआ था ना, उस दौरान मैं संक्रमित हो गया था सर।
ये अब मुझे ना अभी मैंने दोबारा टेस्ट करा, नेगेटिव आई है रिपोर्ट वगैरह मेरी। तो अभी जो मेरे साथ में जो कंडीशन चल रही है ना, मुझे पसली के नीचे पेन होता है, मुझे हल्का हल्का, तो 2-3 दिन से मैं फेस कर रहा हूँ। तो आपको कभी कभी कंडीशन में मैं बाहर हॉस्पिटल भी नहीं जा पा रहा हूँ कि वैसे ही कोविड का बहुत ज्यादा महामारी तो उस डर से नहीं रहा। तो क्या प्रिकॉशन लूं मैं कि जिससे कि मुझे दिक्कत हो, क्या कोई डेंजर दिक्कत तो नहीं है मतलब? जी डॉक्टर नीरू, आप इनका उत्तर देना चाहेंगे? आपको कोविड लास्ट ईयर हुआ था, अभी इस समय जो पेन हो रहा है कितना ड्यूरेशन से है ये मैटर करता है। अगर तब से चला आ रहा है और अभी आप सोच रहे हैं तो आई थिंक तब अभी तक आपने दिखा लिया होगा। लेकिन अगर अभी ये पेन है और इसको आप नहीं दिखा पा रहे तो यह है कि कोई भी पेन किलर बाम जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। पैरासीटामोल एक अच्छी पेन किलर की तरह भी काम करती है, उसे आप सेफली ले सकते हैं। और ये कोविड के फीचर्स में डेफिनेटली अभी की डेट में, क्योंकि आपको ऑलरेडी हो भी चुका है, तो ऐसा देख रहे हैं कि जिनका एक्सपोजर पहले हो चुका है या जिन्होंने वैक्सीन ले लिए हैं उनमें एक्सपोजर रिलेटिवली कम है या माइल्ड है, तो इससे रिलेटेड नहीं लगता है। लेकिन आप रूटीन पेन किलर स्मॉल डोज में ले सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और पेन किलर बाम अप्लाई कर सकते हैं। जी, और इसी बीच एक ऑनलाइन सवाल आया है हमारे पास। नरेंद्र श्रीवास्तव जानना चाहते हैं कि कोविड-19 से रिकवर्ड पर्सन, क्या हार्ट अटैक उनके लिए हो सकता है? हार्ट अटैक उनको हो सकता है जो रिकवर कर चुके हैं? कितने इसके चांसेस हैं? एंड साथ ही उन्होंने एक सवाल पूछा है कि एलर्जिक पेशेंट्स जो हैं क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? डॉक्टर डागा, आप इनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे? देखिए, हार्ट अटैक कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स को अगर होता है तो विद इन फर्स्ट 2-3 वीक्स, क्योंकि इस बीमारी में देखा गया है कि कुछ थ्रोम्बोटिक स्टेट्स होती है, प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट्स होती हैं, और इसी कारण अगर कोई हार्ट पेशेंट है और सीवियर हार्ट डिजीज है और वो अपने ब्लड थिनर लेता रहता है तो उसको कोई ऐसी घबराने की जरूरत नहीं। और हमने कुछ और मरीजों में भी देखा है कि वो रिकवर करते करते उनको हार्ट अटैक हो गया। सो ये जरूर थोड़ा चांस रहता है, बट आफ्टर 2-3 वीक्स ऑफ रिकवरी द चांसेस बिकम वेरी वेरी लेस। दूसरा बात जो आप ये कह रहे हैं कि एलर्जी है, देखिए अगर सीवियर एलर्जी है तो आप वैक्सीनेशन के लिए थोड़ा केयरफुल होना है। पर अगर जनरली देखा गया है हमारे हिंदुस्तान में हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति को कुछ न कुछ एलर्जी है, तो इस सीजनल एलर्जी है या कोई छोटी मोटी ऐसी एलर्जी है उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं। पर अगर आपको सीवियर एलर्जी है कि आपको सारे टाइम तकलीफ रहती है, तो फिर आप जब वैक्सीनेशन लेने जाए तो वहाँ पे सेंटर को सब बताएंगे, उनके पास सब प्रिकॉशंस होते हैं, तो वो तैयारी करके रखेंगे आपको वैक्सीन देने के बाद। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बट यस अगर आपकी सीवियर एलर्जी है और आप उसके लिए कॉन्स्टेंटली दवाई पे हैं थ्रू आउट द ईयर, तब आपको वैक्सीन लगने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। राइट। डॉक्टर माथुर, Deepak Kumar Sharma asks us on Facebook. He asks, please suggest me about weakness after COVID infection. Clearly, he'd like to know what are the measures he can take in terms of diet, perhaps in terms of exercise and so on after COVID infection, after recovery from COVID. So after COVID, this weakness and body pains, is very common. And it takes little time. Some individuals recover very fast and they are back to work within 17 days, or now we have reduced that period also to 10 days. But some take little longer, to recoup completely, and they have a lot of body aches and pains. So it will be individual to individual depending on how much was the infection and the disease in that patient, and what was the involvement of the different parts of the body in that particular case. However, what one needs to do is they will know by themselves as to how much is their capacity now. So they should keep increasing their exercise level. Don't do major exercises just immediately after, but keep graded form. You increase your capacity of exercise, walking, and so that there is no immediately if you start doing a lot of exercise, then you'll not be able to do it. So gradually you keep increasing your capacity to
and have a positive attitude, everyone will recover out of it once he has recovered out of the infection. It is a matter of time. So just have a very positive attitude. You can have teleconsultation with your doctors in case there is any need, because if there is some thing which is required in addition to the regular diet and the exercise, the doctor will be able to tell you. The diet will continue the same as it was in the pre-COVID time. There need not be any special addition to that, and except that you have to take a regular diet. In case you were diabetic and you had COVID infection, or you had some other comorbidities and you had COVID infection, then it is possible that those parameters would have changed drastically. The diabetic would become very diabetic, because it had been taking steroids during period. So that will need to be adjusted to once he has recovered from the COVID, maybe for a longer period of time, that the blood sugar comes back to normal, or the liver functions or the kidney functions were deranged, then they have to be brought to normal. They will automatically come back to normal, but sometimes some interventions may be required. So be in consultation with your doctor. Best is to either visit the doctor in the there are clinics going on in the post-COVID clinics, we call it, or do the teleconsultations with the doctor. These days, the doctors are available in teleconsultation, so you can do the teleconsultation. जी बिल्कुल, जवाब उनको हमारे जिन्होंने सवाल पूछा था, डेफिनेटली उनको क्लियर जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ डॉक्टर नीरू एक कॉलर जुड़ गए हैं, नागपुर से मोहन है हमारे साथ। मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि जो लड़का और लड़की की शादी होने वाली है, उन लोगों को सेम वैक्सीन लेना चाहिए या दोनों अलग अलग वैक्सीन ले सकते हैं, और इसका शादी के बाद बच्चे पैदा होने के ऊपर कोई असर होता है क्या, मतलब बाद में वैक्सीन का? जी डॉक्टर नीरू। वैक्सीन आप कोई भी ले सकते हैं, जो आपके एरिया में अवेलेबल वैक्सीन है उसे ले लेना चाहिए। दोनों को सेम लेना है या नहीं लेना है, इसका कोई नहीं। हाँ, एक पर्सन को सेम वैक्सीन लेने हैं, दोनों लोग अलग अलग भी ले सकते हैं, सिमिलर भी ले सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन आपका था कि बच्चे पर इससे कोई असर होगा कि नहीं। वैक्सीन का इस तरह, अभी उनकी मैरिज ही नहीं हुई है, अभी वैक्सीन का इफेक्ट जो है आना शुरू हो जाता है ब्लड में, और हालांकि अभी कोई ऐसी स्टडीज नहीं है, लेकिन जो रिसेंट स्टडीज आ रही हैं उसके हिसाब से इससे बेबी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं आने वाले हैं। जी Right. Another, while Mr. Saini asks a question, he says, "Sir, my wife became corona negative on 26 April and she was discharged from hospital on the 30th of April. Her saturation N level is between 95 to 97. Is it normal?" Well, Dr. Daga. Yeah, I think it is absolutely normal. Do not worry. And it is towards recovery. You can do one thing more. If she started exercising and moving about, then you can check the saturation before and after exercise, and it would remain at the same level. So it is a normal. Any level above 94 is considered as normal. Dr. It will Daga, touch 98, 99 also, in case she doesn't have any other pre-existing lung disease. So it should be considered normal. Right. Dr. Daga, when we talk about home isolation, what are the steps that the caregiver has to ensure are taken each and every day? Yeah, absolutely right. If the patient himself or herself is fully alert and can follow some of the measures we suggest, then home care doesn't have to worry. But there are situations when there are elderly, not able to send them to the hospitals, and you are taking care. One is level of alertness. Number two, are they developing any other new symptoms? Is their cough increasing? Is their fever increasing? Or they are, when you're conversing with them, they find that they are short of breath or their voice is heavy. All these symptoms, in addition, if new symptoms like diarrhea, vomiting develops. So every day you have to monitor that and monitor temperature at least 3 times a day and oxygen also 3 times a day. And this all becomes much more critical on day 6, 7 onwards.
that is the level, that's the time when sometimes the pneumonia has set in and the oxygen levels start falling. So during that period, if your fever is still high, your oxygen levels are started fluctuating, although they may be 94, but they are fluctuating. And if an individual is able to walk for 4 or 5 minutes and finds that oxygen levels are dropping, then is the time to be very alert, get in touch with your physician. He might suggest you starting some new drugs. So these are the things one has to be careful while at home. Of course, you will have to take your other medicines if you are having blood pressure or diabetes or heart problem or kidney problem or any. Do not stop those medicines, but share it with your physicians, with who is treating you, that you are already taking these medicines. What I have found is that people were taking blood thinners, and they have been additionally prescribed blood thinner because the physician was not told or it was overlooked. So people were taking double doses. So you have to monitor all these aspects of the patient. जी, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और अपने डॉक्टर जिससे भी कंसल्ट कर रहे हैं उनको पूरी डिटेल्स देनी है कि आप पहले कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, डॉक्टर एनएन माथुर हमारे साथ जम्मू से कुलदीप शर्मा जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। जी, आप अपने टेलीविजन की वॉल्यूम कम कर दीजिए और अपना सवाल एक बार में पूरा पूछ लीजिए। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम कुलदीप शर्मा है, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। मैं शुगर पेशेंट हूँ, डायबिटिक, तो इंसुलिन पर हूँ। 8 साल हो गए इंसुलिन पर। सो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ना, होम में ही रहता हूँ, ऑफिस में नहीं जाता। 1 महीना हो गया जब से ये काफी इसका हाई हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन मेरा ये था कि वैक्सीनेशन मेरी हो गई है, फर्स्ट फेज सेकंड फेज, क्या इस टाइम में ऑफिस जा सकता हूँ क्या? दिस इज माय क्वेश्चन ऑन। जी डॉक्टर माथुर। जी, अभी तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अभी तो वैसे लॉकडाउन पीरियड में है, और अगर आपका ऑफिस बंद है तो आप होम से काम कर सकते हैं, तो ज़रूर उसको करें। अगर ऑफिस जाना भी हो तो पूरी प्रिकॉशंस लें आप। मास्क अच्छी तरीके से पहने, बिल्कुल भी मास्क उतारे नहीं, हैंड वॉशिंग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, और कोशिश करें कि जितना काम घर से हो जाए और ऑनलाइन हो जाए, अगर आपकी ऐसा पॉसिबल है नेचर ऑफ वर्क में, तो वो करें तो अच्छा रहेगा। जी, राइट। Dr. Mathur, another visitor to our website has asked us, Praveen Nayak, my mother took the first dose of Covaxin on the 1st of April, but now she is COVID positive. There are no symptoms. Should we delay the second dose? Dr. Mathur. Yes. So she took the first dose, and I missed on, but she developed COVID. Yes, without symptoms, asymptomatic. Yes. Right. So those patients who after first dose have developed COVID, and they are asymptomatic or symptomatic, they have to postpone their scheduled date of the second dose by at least 3 to 4 weeks, preferably 3 months. There is some different views on that, but at least by 3 to 4 weeks. So if that is after they recover from their. So what they have to do is, suppose if they recover on particular day, after that at least 3 to 4 weeks, and if possible 3 months should be the delay. Plus and this time should be after the scheduled date. So I think I'm able to make you understand that if you add 3 to 4 weeks into that scheduled date, and suppose the actual date was coming further than that, then whichever is later you will take, but at least 3 to 4 weeks delay should be there. तो ये सेकंड डोज ही लेना है उसके बाद, या अगर 3 महीने का बीच में गैप? जी
ओनली सेकेंड डोज। ओनली सेकेंड डोज, जी जी। डॉक्टर नीरू, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। अक्सर लोग इस बारे में थोड़े से पिछले कुछ समय में जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर बातें हो रही थी, तो लोगों ने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर रखने शुरू कर दिए या फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लोग खरीद रहे हैं अपने घर में रखने के लिए। तो इसको लोग लेकर आप किस तरह की सलाह देना चाहेंगे कि कब इसकी ज़रूरत है, घर में इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किसी डॉक्टर की देखरेख में ही इनका इस्तेमाल करना चाहिए? अगर पर्सन होम आइसोलेशन में है, उसकी डिजीज माइल्ड है, तो उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अगर उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब वो एटलीस्ट मॉडरेट सिवियरिटी का उसका इन्फेक्शन है। दैट मीन्स हिज सैचुरेशन इज लेस देन 94%। हाँ, पीछे ये हुआ था कि ऑक्सीजन की भी कुछ शॉर्टेज थी, कुछ बेड्स की शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से जो है कई पेशेंट्स को जो है घर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई और उन्हें इससे पहले उन्हें हॉस्पिटल में बेड मिले, उन्हें घर में ऑक्सीजन की अरेंज करने पड़े। लेकिन एज सच मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि इससे जो एक्चुअल में जो पर्सन को, पेशेंट्स को जो ऑक्सीजन की डिलीवरी है वो अफेक्ट होगी। तो होम कंसंट्रेटर का आप रख सकते हैं जस्ट टू टाइड ओवर द इमरजेंसी, लेकिन आप सोचें कि उसको होम आइसोलेशन में भी रखें, मॉडरेट सीवियरिटी की डिजीज है, और साथ में घर में ही ऑक्सीजन या कंसंट्रेटर यूज करें, और वो भी बिना डॉक्टर के सुपरविजन के, ये एडवाइजेबल नहीं है। उन्हें अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि 94% सैचुरेशन हो रहा है या उसे डिप कर रहा है, तो इमीडिएटली जो उनके प्राइमरी केयर डॉक्टर हैं उनको वो कांटेक्ट करें, जिससे कि उनकी आगे की नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो डिसाइड कर पाएं। जी बिल्कुल, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, डॉक्टर डागा, आप इनका सवाल लीजिएगा। हमारे साथ शीला चैटर्जी जुड़ गई हैं जमशेदपुर से। शीला जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी शीला जी। गुड मॉर्निंग सर। मैं जमशेदपुर से बोल रहे हैं, रिटायर्ड स्टाफ नर्स हूँ। मेरे जस्ट नीचे घर में 75 ईयर्स लेडीज को बहुत वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा था, है ना। कोई डॉक्टर नहीं आ रहे थे, मैंने चले गए उनके पास, जाके उनको पूरा नर्सिंग किया। 24, 25, 26 किए। 26 शाम को पता चल रहा वो पॉजिटिव है, तो हमने तुरंत RT-PCR टेस्ट कराए, उसमें 29 को नेगेटिव आया। लेकिन 4 तारीख से मेरा हाई टेम्परेचर था और लोअर पोर्शन में बर्निंग सेंसेशन है और पेन हो जाता, ज्यादा करके शाम के समय में। मैं अकेला घर में रहती हूँ, 62 साल है, एक फ्लैट में अकेला रहती हूँ। अभी मैं डॉक्सीसाइक्लिन, पैरासीटामोल, जिनको भी विटामिन से एज ए सीनियर प्रोफेसर का एडवाइस अनुसार सब ले रही हूँ आज काउंटर, लेकिन बर्निंग सेंसेशन तो पैर का कम नहीं हो रहा। इसलिए डॉक्टर से एडवाइस अच्छा और कोई मेडिसिन ऐड कर ले कि मैं सेफ्टी हो जाए, और अकेला घर में रहती हूँ मैं। उस दिन 5 दिन मेरा बुखार में थोड़ा निश्वास लेने तकलीफ हो रहा, तो हम तुरंत स्पेरोमेट्री करने लग गया, वॉल्यूम फुलाने लग गया, तो कंट्रोल हो गया है। एज ए फादर हमको क्या, अकेला घर में रहते हैं, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, पूछ रहे हैं। देखिए, अगर आपको बुखार चल रहा है 4 तारीख से और अभी तक बुखार है, तो फिर आपको कोविड टेस्ट वापस कराना चाहिए। ये कोविड हो सकता है, पहला आपका रिपोर्ट नेगेटिव हो सकता है, और बुखार अगर इतना रह रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करिए, टेस्ट कराइए और ऑक्सीजन मॉनिटर करिए। बुखार कम करने की दवाई लीजिए। बहुत तेज बुखार है आपको तो आप पैरासीटामोल की जगह दूसरी दवाई भी ले सकते हैं। पर अगर आप आज अगर 4 दिन हो गए हैं आपको बुखार के, तो अगले 5-6 दिन आपको और ध्यान रखने की जरूरत है। आपको लगता है कि और कोई बीमारी की आप दवाइयां लेते हैं तो वो लेते रहिए, लेकिन जरूर आपको टेस्ट कराना है, और टेस्ट करा के, और उसके अलावा आपके डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं कुछ और ब्लड टेस्ट भी, और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो कराने हैं, और ऑक्सीजन मॉनिटरिंग दिन में 3-4 बार बहुत जरूरी है। सो आपको इसको अभी तो कोविड मान के ही चलना चाहिए। Right. Dr. Mathur, when we talk about patients in home isolation, can that person have somebody keeping him or her company in the room? How is that to be managed? What are the kind of precautions that the person who, supposing we've heard advice by doctors that one person should be assigned for the care of that person. Also another question, can a person self-isolate himself or herself? Very good questions and very practical ones. The first one,
whether the person whose caregiver can remain in the same room. He can. It is better that he remains in the room only when he's giving the care, and rest of the time he moves out. But in case he has to remain in the same room, then I would say that double mask yourself, and at least don't talk directly to the patient. Have both of you look in the different directions and then communicate. If the room is small, and try to take as much of stringent precautions as possible. One thing more that the caregiver has to understand is that the person whom he is giving care, who is COVID positive, will be more infective in the initial phase of the disease. And as the day 7 or 8 comes, the infectivity part will go down. And if the person is, say, 14 days old into the disease, and then the infectivity rate will be very, very, very less. So that should be borne in mind, that earlier period is more effective. So more precautions in the earlier period. Later on, there can be some laxity in the form of you can be little more into that room. But in the earlier period, and fortunately in the earlier period, the person who requires the care is quite okay. It is those patients who become very sick usually become sick on a little later, say after 7 days, or they recover. So those who become very sick suddenly after 7 days are usually not very infective to an extent that they were in the earlier period. And then if somebody becomes sick, then he is no more in the home isolation. He has to be shifted. But what I'm meaning to say is that if they in the later period of care, person is giving care, then and to a very sick patient, he or she is not that infected. That can be borne in mind. जी. हमारे साथ एक कॉलर just जुड़ गए wanted हैं. to add a thing जी. about that. जी. Ventilation in the room should be assured. If possible, you can keep your windows open. And if you are using an air conditioning, try and use HEPA filters or something like that, because that would also help that, this is not there in the room all the time. The virus is not in the room. So just wanted to add that. जी. डॉक्टर आगा, एक हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं. पवन हैं हिमाचल से. पवन, आपका स्वागत है. अपना सवाल पूछिए. सर, मैं हिमाचल से सोलन डिस्ट्रिक्ट से जुड़ गए हैं. पवन हैं हिमाचल से. पवन, आपका स्वागत है. अपना सवाल पूछिए. सर, मैं हिमाचल से सोलन डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ. मुझे जो है वो कोविड हुआ था, और कोविड होने के बाद 7 दिन बाद जो है वो मुझे वहां से हॉस्पिटल की तरफ से जो है वो रिलीज ऑर्डर मिल चुका है. जी, तो आपका सवाल क्या है? और उसमें जो है वो मैं ये चाहता हूँ पता करने के लिए कि मैं अब जो है वो अपनी फैमिली से क्या अभी मिल सकता हूँ, कि अभी मैं और वेट करूँ उसके लिए, फैमिली के साथ मिलने के लिए, नंबर 1 पर. और नंबर 2 पर मेरा सवाल ये है कि अब जो है वो मुझे क्या नहीं खाना चाहिए. जी, ठीक है. देखिए, अगर अभी आपको 7 दिन ही हुए हैं बीमारी के, तो मैं ये चाहूंगा कि आप एटलीस्ट अगले 3-4 दिन और ना मिलें. 10 दिन के बाद आपसे दूसरों को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो. और अगर आपको कुल 10-11 दिन हो गए हैं बीमारी के, तो आप मिल सकते हैं अपने परिवार से. फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सब लोग मास्क पहन के रहें 2-4 दिन, और घर से बाहर न जाएं. खाने पीने में कोई चीज का परहेज नहीं है. आपको अगर कोई दूसरी बीमारी है उसके लिए कोई परहेज बताया गया है तो वो रखिए. अदरवाइज सारा खाना पीना खाएं, अच्छा खाएं, फल फ्रूट सब्जियां सब फ्रेश खाना खाएं, और कोई परहेज की जरूरत नहीं. जी. Right, and Dr. Mathur, we were also discussing about self-quarantine, about self-isolation.
Is it a viable measure? Can that be adopted? Under what conditions would you advise? See, that is not advisable to do self-isolation because some caregiver has to monitor you. But suppose somebody has got no other choice and needs to be self-isolated, then I would suggest that at least in that case, the cutoff when you have to go to the hospital or when you have to go to the seek the advice should go down. So the cutoff will go down. So it means you should be more proactive in seeking the advice or going to the hospital because the buffer period will become little less, and because you will have to self-arrange the things, and or you may not be good enough to arrange the things. जी. So bring that period little down. जी. डॉक्टर नीरू, एक सवाल है, बल्कि 2-3 हमारे दर्शक हैं जो फेसबुक के जरिए ये सवाल पूछ रहे हैं. एक का कहना है कि उन्हें 6 दिन हो गए हैं पॉजिटिव टेस्ट होने के बाद, और एक का कहना है उन्हें 9 दिन हो गए हैं, और दोनों का यही सवाल है कि इनका फीवर नहीं जा रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? वो इस बार कोविड इन्फेक्शन में फीवर का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है. कुछ पेशेंट्स को 10-12 डेज तक भी, और इवन आफ्टर दे हैव बिकम नेगेटिव उसके बाद भी कुछ लोगों को फीवर चल रहा है. इस पर डिपेंड करता है कि फीवर की सिवियरिटी क्या है, उनका कोविड स्टेटस क्या है. कोविड जिनको 6 डेज से आ रहा है उनका जो है अभी कोविड स्टेटस पॉजिटिव ही होगा. अगर फीवर माइल्ड है तो उन्हें जो है वेट करना चाहिए और सिंपल पैरासीटामोल लेंगे. लेकिन एट द सेम टाइम इस बार हमारा जो, जैसे अभी डॉक्टर दागा ने बताया था कि जो नेक्स्ट 6-7 डे वाला टाइम है ये थोड़ा सा क्रूशियल होता है. इसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स करा के टेस्ट करके देख लेना चाहिए कि कहीं कोई सिवियरिटी बढ़ तो नहीं रही है. कभी कभी ये भी देखा जा रहा है कि सैचुरेशन नहीं डिटोरेट कर रहा है लेकिन फिर भी फीवर परसिस्ट कर रहा है या हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, तो इसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का रोल है. और डॉक्टर से कंसल्ट करके ये चेक कराएं जिससे कि आगे के लिए इनका डिजीज का कोर्स कैसा होगा, जो कि ये जानना चाहते हैं, उसे इनको एक पता चल जाएगा. अगर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हुए हैं तो हो सकता है कि इनके डॉक्टर इनके लिए स्टेरॉइड्स वगैरह या और एंटीवायरल मेडिकेशंस का ऐड करने का प्लान करें. जी. और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अरुण शर्मा. डॉक्टर डागा, अरुण शर्मा हमारे कॉलर हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं. अरुण जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए. सर, मैं जबलपुर से अरुण शर्मा बोल रहा हूँ. जी. सर, एक्चुअली मेरे फादर मदर दोनों को कोविड पॉजिटिव हुए थे और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं. 30 अप्रैल को उनका 14 डेज क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया है. तो सर मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली उनको 15 मार्च को फर्स्ट डोज लगा था कोविड शील्ड का. तो मैं जानना चाहता हूँ कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद, वो ठीक होने के बाद कितने डेज के बाद हम सेकेंड डोज लगा सकते हैं कोविड शील्ड का? देखिए, कोविशील्ड वैक्सीन का वैसे भी कुछ स्टडीज हैं और रिकमेंडेशन भी है कि आप पहले और दूसरे वैक्सीन के बीच में 8 to 12 वीक्स का गैप रख सकते हैं. और जबकि इनको अभी कोविड हुआ, रिकवर हुए हैं, तो मैं तो चाहूंगा कि आप अभी कम से कम 3-4 वीक और गैप रखें. तब तक इनका 12 वीक का रफली गैप हो जाएगा. अगर मार्च में लगा है तो जून में, तो आप जून फर्स्ट वीक 8-10 जून के आसपास अगर आप चाहते हैं तो इनका वैक्सीन लगा सकते हैं. उसके पहले लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है और इतना गैप आप रख सकते हैं. Right. Well, R.K. Goyal, a visitor on Facebook, asks, can we visit a person using COVID appropriate behavior even when that person whom we are visiting has recovered from COVID before 7 days? That means he was infected, and the period of infection from when he was infected and his recovery was 7 days. Dr. Mathur, so can we visit a person? Absolutely, you can visit, but we are advising that no unnecessary visits should be there these days, social visits. But as far as the infectivity part is concerned, if the patient has recovered and 7 days are already over after recovering, there is no chance that the patient, that person will be infected.
जी, डॉक्टर नीरू, एक सवाल और है। उत्सव गुप्ता पूछना चाहते हैं कि उनकी मदर को हाई बीपी है, इरेगुलर हार्ट बीट है, शी इज ऑन Silacar-10 tablet and one more medicine. Is it fine for her to take vaccine if she suffers from irregular heartbeat and had been anemic? कोई भी पर्सन कितनी भी कोई भी कोमॉर्बिडिटीज हो उसके लिए वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो इन्हें वैक्सीनेशन के लिए किसी भी तरह से हेसिटेट नहीं करना चाहिए। सिर्फ कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि अगर सीवियर एलर्जी है वैक्सीनेशन से, एज सच फूड एलर्जीज भी कॉन्ट्राइंडिकेशन में नहीं आते हैं। तो अगर इन्हें कोई वैक्सीन के कंपोनेंट से एलर्जी है उसी केस में वैक्सीन नहीं लेना है, अदरवाइज कोई भी कोमॉर्बिडिटी इस समय वैक्सीन का कॉन्ट्राइंडिकेशन में नहीं आएगी। जी, right. Dr. Daga, when we talk about comorbidities, when we talk about the care that has to be given by the caregiver, even when that person is in home isolation, for example, would you advise it if a person has been diagnosed with very severe symptoms, or is it more beneficial for people who are from your experience, could you tell us, have the patients with severe symptoms been cured with home care and home isolation? It's a very good question, and we were forced to do this in last few weeks because of non-availability of the beds, and we were able to manage if we were able to get in touch with them regularly, or our assistants or anyone, you know. So it's a tough call, but if the patient's caregiver are very receptive, they are able to do what we suggested, and patient is able to cooperate. Yes, we were able to manage patients with moderate disease at home also, but I would not advise that as a routine. I would advise that yes, you need to, because you have to have a lot of things available with you. You need some blood testing repeatedly. You may need sometimes slight oxygen. You may also need constant monitoring of vitals and oxygen. And every day and 2 or 3 times in a day is a challenge, you know. So if the doctor is comfortable, if the patient and the caregiver are comfortable, and they are very meticulous and particular, I think they can do that. We have done it. But I would not advise that as a routine. जी, डॉक्टर माथुर, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, इनका सवाल आप लीजिएगा। हमारे साथ संजय हैं छत्तीसगढ़ से। संजय जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मेरा कहना ये था कि 7 अप्रैल को मेरा पॉजिटिव रिपोर्ट आया था कोरोना का, और अब 7 मई है। मुझे लगता है मैं रिकवर हो गया हूँ, बट मैंने दोबारा रिपोर्ट नहीं लिया है, चेक नहीं कराया। तो मेरा कहना ये था कि जो 18 साल के बाद वैक्सीन लग रहा है, तो मेरे में तो नेचुरल एंटीबॉडी बन गई होगी, तो क्या मुझे दूसरों को मौका देना चाहिए कि वो पहले एंटीबॉडी बना ले वैक्सीन के थ्रू, कि मुझे भी जाकर लगवा लेना चाहिए? एज फार एज आपका मेडिकली आपको वैक्सीन लगाने की बात है, वो आप लगा सकते हैं 3 to 4 वीक्स ऑफ रिकवरी। तो आप जैसे अभी 1 महीना आपको अगर हम समझें कि 17 डेज के अंदर आप कंप्लीटली रिकवर किए थे, तो अब आपको 1 महीना हो गया है, तो आप समझिए कि आप 3 हफ्ते के बाद और जाके वैक्सीन लगा सकते हैं। वो दूसरा जो आपका प्रश्न है कि किसी और को चांस दें और आपने को नहीं लगाए, वो आपका पर्सनल कॉल है, वो आप अपने आप लीजिए। जी, राइट। Well, another caller, another question he's asking about his brother-in-law who has been admitted in hospital for nearly 17 days now. The CT scan is showing, has been showing continuously for a week a score of 17. While I would not understand what that is, Dr. Neeru, would you explain it to us a little in elaboration? And his question is, why is this so? For even a week later, his CT scan is showing 17. When a person has COVID pneumonia, we grade it into mild, moderate and severe. So if it is less than 7, it is taken as mild. Between 7 to 14, it is moderate, and more than 14, that is 15 to 25, it is severe.
And this 25 figures comes from they divide the lungs into different zones. The more the numbers, more the number of zones involved, severe is the disease. So as he says that it is 17/25, it means it is a severe COVID infection in his lungs, and it in itself carries not a very good prognosis and requires lot of care, because there is more inflammation of the lungs, more damage to the lungs, and probably that's the reason even after 17 days, because by 14 days we expect the person has become COVID negative and he requires hospital stay and oxygen support. It means a severe infection and it's taking a longer time to come out of it. In this situation, many such patients have secondary infections also, and that could be bacterial, that could be fungal or any other infections. So the doctors have to treat it with antibiotics, antifungals many times depending upon their culture reports, and supportive care is needed in such patients. Recovery, I think he wants to know about the recovery. I would not comment on that, but yes, at the same time, it's your efforts, the fibrosis in the lungs that would ultimately decide the course of illness. जी जी। और एक हमारे साथ और एक हमारे दर्शक हैं जो फेसबुक के जरिए सवाल पूछ रहे हैं। डॉक्टर डागा, ये अभिनव किशोर पूछ रहे हैं कि इनका ब्लड सैचुरेशन लेवल चेंज होता रहता है हर 2-3 सेकंड में। जब भी वो चेक करते हैं, कभी वो 95 दिखाता है, कभी 98 दिखाता है। क्या इसमें कुछ चिंता का विषय है? और एक बार हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइएगा कि ऑक्सीमीटर पे प्रॉपर रीडिंग कैसे लें? ये जो है ना, हर 2-3 सेकंड में ऑक्सीजन चेक नहीं करना चाहिए आपको। देखिए, आप जब भी ऑक्सीमीटर लगाएं तो आप या तो इंडेक्स फिंगर या मिडिल फिंगर पे लगाएं, अपने हाथ को स्थिर कहीं सपोर्ट पे रख लें, टेबल पे सामने या कोई उस पे, और नीचे रख के फिर ऑक्सीमीटर लगाएं आप, और एटलीस्ट 10-15 सेकंड वेट करें। जब रीडिंग आएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी, वो रीडिंग मानी जाएगी। आपको ये हर 1-2 सेकंड में फ्लक्चुएशन है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। अगर फिर भी आपको बहुत एंजाइटी है और आपको कोविड है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप, अगर बुखार नहीं है आपको और आप चल फिर सकते हैं थोड़ा, तो आप पहले बैठे हुए अपना ऑक्सीजन चेक करिए, फिर 6 मिनट वॉक करिए, और उसके बाद आके बैठ के वापस ऑक्सीजन चेक करिए। अगर उसमें लेवल 1-2 ही फर्क पड़ता है या नॉर्मल उतना ही रहता है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये एकदम लगाते ही ऑक्सीजन मीटर आप जब देते हैं ना ऑक्सीजन, तो वो थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, उसको नहीं देखिए आप थोड़ी देर 10-15 सेकंड वेट करिए, कभी कभी 30 सेकंड भी, और वो रीडिंग को मानिए। Right. Dr. Mathur, Aditya Chauhan asks, Sir, I am having allergy from Norflox TZ and OZ and Brufen kind of medicines. Can I get the COVID vaccine? Yes, he can get COVID vaccine. Our COVID vaccine has, whenever it is given, there is a caregiver there, and the doctor is also there in the premises. Whatever allergies you have, you just tell them, and they will note down that. And in case some extra precaution is required, it will be taken. Already, all the COVID vaccination centers have got the life-saving medicines and the facility to take the patient away into the hospital in case there will be need. We have not found immediate severe reactions in very few cases we have found. In some of the centers, none of the person has got such reactions, most of the centers. Yeah. So this is very rare. So don't worry, and you can get the vaccination. जी। डॉक्टर नीरू अग्रवाल, हमारे एक फेसबुक पर हमारे दर्शक हैं मदन मोहन तिवारी, ये जानना चाहते हैं कि 12 दिन पहले इनका कोविड का इलाज चल रहा था, पर पॉजिटिविटी की रिपोर्ट 4 दिन पहले आई है। अब ना बुखार है, ना कोई अन्य लक्षण है, सूखी खांसी लगातार बनी रहती है। ऐसे में इनको क्या करना चाहिए? जो ये बता रहे हैं, क्योंकि डिजीज का जो कोर्स है मिनिमम 10 डेज और मैक्सिमम 20 डेज, इसमें वायरस क्लियरेंस होती है। तो ऑलरेडी इनके 12 डेज हो चुके हैं, तो इन्हें मान के चलना चाहिए कि इनका कोविड इन्फेक्शन मोस्ट लाइकली क्लियर हो गया, क्योंकि इनके कोई सिम्टम्स और नहीं है।
माइल्ड कॉफ रह सकता है, जिसके लिए वो कोई भी एंटीहिस्टामिनिक लें, और इसके लिए या फिर अपने फिजिशियन को दिखाएं कि उसके लिए कोई और रीजन तो नहीं है कॉफ के लिए। Right. Joining us now is a caller from Shimla, Pramod. Pramod ji, thank you very much for calling in. आपका सवाल पूछिए। सर मैंने आज कोविशील्ड का फर्स्ट डोज लिया है। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। हाँ जी, तो मैं ये ना ये क्लोपिटैब A75 लेता हूँ और बीपी की कार्डेस 5 लेता हूँ ट्वाइस, और मेट्रोलार वगैरह लेता हूँ। तो क्या मैं ये जो क्लोपिटैब ए है ब्लड थिनर, जिसमें ये इकोस्प्रिन 75 है और क्लोपिड्रिल 75 है, तो ये मैं ले सकता हूँ जी, कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये स्टेंट वगैरह पड़ी थी 1 साल पहले। जी डॉक्टर डागा। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं आप। अपनी हार्ट की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई बिल्कुल बंद करने की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल नहीं सोचिए इसके बारे में, आराम से लीजिए। जी डॉक्टर डागा, एक और सवाल है हमारे साथ। रमेश संजानी हैं, इन्होंने फेसबुक के जरिए पूछा है कि ये 70 साल के हैं, 8 महीने पहले इन्हें कोरोना हुआ था और प्रॉब्लम उनको ये है कि जब वो बोलते हैं तो ही स्टार्ट्स गैस्पिंग, तो ऐसे में उनको अब क्या करना चाहिए? 8 महीने पहले अगर कोरोना हुआ है और बोलने में गैस्पिंग अभी हो रहा है, ये बात क्लैरिटी नहीं। या तो इनको कोई और भी बीमारी है, हार्ट की, लंग्स की, या और कोई क्रॉनिक इलनेस है। या फिर अभी इनको कोई नए सिम्टम्स डेवलप हुए हैं। 8 महीने पहले कोरोना से इसका संबंध बहुत कम है। और अगर बीच में ये अपना सब काम कर पा रहे थे, कोई चलने में दिक्कत नहीं थी, इनका कोई सांस नहीं फूल रहा था, तो फिर ये जो गैस्पिंग का है, ये कुछ और असेसमेंट इनको कराने की जरूरत है। फिजिशियन से कांटेक्ट करें और देखें कि ये क्या कारण है। Right. Well, we've had a very interesting discussion. The topic of our discussion. I just wanted to add one thing. We had one caller just 2 minutes back when he has cough now at 12 days of COVID. So this cough can sometimes remain for 2-3 weeks, like any post-viral cough. So don't worry about that. In case your cough increases in intensity or you develop fever again, then consult a physician. Otherwise, if cough is not disturbing too much, do not bother. But if it is disturbing you too much, get in touch with your physician. He may give you some cough medicine which will help you. So do not worry for cough lasting for 3-4 weeks even. But the intensity should not increase and your breathing should remain okay. If there is no breathing problem, then do not worry about it. And keep doing breathing exercises. Right. Well, we hope our viewers had all their queries answered on the show. Coming to you for final comments now, Dr. Mathur, Dr. Daga and Dr. Neeru. First of all, Dr. Neeru, what would you, since our topic is home isolation, a small message from you for those who would opt for that, about its benefits, about what would be your message? The person who is in home isolation should be in a well ventilated room. He should wear a mask, and the caregiver should also wear a mask when he is going to the patient and providing food or changing linen or going for the cleaning of the room. So using of mask is very important. At the same time, he should wear a gloves when handling with the these articles of the patient. जी डॉक्टर दागा, अक्सर लोग जब ऑक्सीजन की बात होती है उसको लेकर थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहते हैं। ऐसे में कुछ इस तरह की भी बातें सामने आ रही थी कि प्रोन पोजीशन में या उल्टा लेटकर जिसकी ऑक्सीजन कम हो रही है वो लेवल को पूरा कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा करने की ज़रूरत है उन लोगों को जिनकी ऑक्सीजन नॉर्मल है और वो कोविड पॉजिटिव हैं? उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर उनका ऑक्सीजन में कोई अदेपी नहीं है तो ये करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपका ऑक्सीजन फ्लक्चुएट कर रहा है, आपको कफिंग ज़्यादा हो रही है, तो वो इनडायरेक्ट इंडिकेटर होता है कि शायद थोड़ा निमोनिया है आपके। और ये मान के चलिए कि 9 आउट ऑफ द 10 पेशेंट्स को निमोनिया होता ही है इसमें, पर जो माइल्ड कैटेगरी वाले हैं उनका निमोनिया इतना कम होता है कि उनको इसकी तरह की कोई जरूरत नहीं होती। पर माइल्ड टू मॉडरेट में जब कोई जाने लगता है तो थोड़ी कफिंग बढ़ जाती है, थोड़ा सीने में भारीपन भी लगने लगता है। ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत आप, जैसे मैंने कहा, ऑक्सीजन आप
बैठे हुए और 5-6 मिनट चलने के बाद चेक करें तो आपको थोड़ा इंडिकेशन मिल सकता है। ऐसी स्थिति में अगर फॉल होता है थोड़ा, हालांकि वो 94 से ऊपर ही रहता है, तो फिर आप थोड़ा उल्टा लेट के प्रोन पोजीशन में लेटेंगे थोड़ी देर, फिर लेफ्ट राइट लेटरल, राइट लेटरल में लेटे, फिर सीधा लेटे। ऐसा करते रहेंगे तो काफी आराम मिलेगा। और उस पोजीशन में थोड़ी थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, बहुत लाइट, कोई में विग्रस एक्सरसाइज नहीं करनी है, बहुत लाइट तरह की एक्सरसाइजेज है। Dr. Mathur, finally, is there any point that you would like to stress on that you would consider important when it comes to home isolation as we get ready to wrap up the show? If you would reiterate any such point that you think that we have missed out and which is crucial. Yes, home isolation will be the mode of treatment. Ultimately, in most of the cases, will just be treated on home isolation. Home isolation should be done very methodically. All the guidelines should be read, and home isolation, both the caregiver and the person who is being isolated should very intelligently tackle that situation. You know, this virus, it will be tackled with the mind, not with the heart. जी, तो अपना ध्यान रखना है और बिल्कुल अपने माइंड से, जैसे आप डॉक्टर ने कहा कि ध्यान रखना है और चीज़ों को इस ऐसे मौके पर अपने साथ वालों का पूरा ध्यान रखना है। यकीनन इस बीमारी से हम जीत हासिल करने में कामयाब रहेंगे और ज़्यादातर केसेस जो हैं वो होम आइसोलेशन में ही ठीक होते हैं। डॉक्टर एनएन माथुर, डॉक्टर मृदुल कुमार डागा, डॉक्टर नीरू अग्रवाल, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे इस शो में आए और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। इस शो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए, दर्शकों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा जी, हम अपने दर्शकों को ये भी कहना चाहेंगे कि बहुत सारे आपके सवाल आ रहे हैं फेसबुक पर। कुछ सवाल अगर हम नहीं ले पाए हैं तो आप ट्यून इन कर सकते हैं। इसी वजह से हम दिन में 3 बार डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम कर रहे हैं। 3 बजे एक बार फिर से डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम लाइव होगा और उसमें हमारे साथ एक और पैनल जुड़ेगा डॉक्टर्स का। आपके अगर सवाल रह गए हैं तो आप वहां पर भी वो सवाल पूछ सकते हैं। Right, very well said. As Tejinder has reiterated, has pointed out, you can join us again at 3 p.m. and tune in again at 7 p.m. each and every day for all your queries on COVID, as we have different panels of doctors, different panels of specialists and experts to give you the best advice. Many thanks to all our guests and to all our viewers for joining us here on the show. That's all in this edition of Doctor Speak. Namaskar. Namaskar.